Hello everyone. Today we are going to start class 11's topics which is belongs to physics, and that topics is called gravitation. What is the name of that topic? Gravitation. So in your previous year you have already read about gravitation. If I told you is gravitation and gravity are same, so what's your answer? What will your answer? So gravitation and gravity is both are same or not? So we say that gravitation and gravity are not same. Why? So let's discuss about gravitation. After that we further discuss about gravity. So let's know about gravitation. What is gravitation? So if I told you about gravitation means the force of attraction between any two bodies. The force of attraction between any two bodies we called gravitation. But if we told about gravity, what is gravity? You must include in this theory, in this particular word gravity, you must have to include earth. You must have to include earth. The force of attraction between earth and any object, any other bodies is known as gravity. This is the main difference between gravitation and gravity. What we told about gravitation, the force of attraction between two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो ऑब्जेक्ट मतलब दो बॉडीज, जैसे कि आप ले सकते हो टेबल, कुर्सी, दो पर्सन जो खड़े हैं. एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर टू पर्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस person is called A and this person is called B. So according to gravitation, person A attracts person B and person B attracts person A. So this is called gravitation, where two objects are attract each other. If we told about gravity, so in gravity you must include that person A and second one is earth. Second one is earth. So if earth attracts any person and any other bodies into it is known as gravity. So what do you mean by gravity? The force of attraction between earth and any other body is known as gravity, and gravitation means the force of attraction between any two bodies is known as gravitation. तो ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में, जो हम इजीली समझ सकते हैं. तो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो इसका अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? इट इज द force of attraction between any two bodies. any two bodies मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, चाहे वो टेबल, बेंच, कुर्सी, जितने भी आसपास हमारे आसपास दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है. तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies is called gravitation. ठीक है, अंडरस्टूड. मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ग्रेविटेशन जो होता है वो केवल अट्रैक्टिव फोर्सेस को शो करता है. क्लास 12 में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस के बारे में समझेंगे, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस. बट ग्रेविटेशन जो होता है केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ही शो करता है. अगर इसकी बात करें ग्रेविटी की, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? तो अर्थ एंड एनी अदर बॉडी. इट इज द force of attraction it is the force of attraction between earth
व्हाट वी से, अर्थ, between earth and any other bodies, any other bodies is called gravity, is called gravity. तो हम लोग ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ गए. अब हम आप ग्रेविटेशन में डिस्कशन किए, सर ग्रेविटेशन में दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये तो सही है. तो सर हमारे आसपास इतने सारे टेबल है, कुर्सी है, हम लोग इतने सारे अपने फ्रेंड लोग आपस में साथ में बैठते हैं, उठते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? ये भी तो क्वेश्चन आप लोग के मन में अराइज होता होगा. तो व्हाई डोंट वी अट्रैक्ट ईच अदर? तो अगर हम बताएं कि हम लोग जो मासेस, जैसे मान लीजिए एक मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको ग्रेविटेशन में क्या कहा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं. तो ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है ना, तो हम लोग चिपकते क्यों नहीं है? फिर हम अपने दोस्त के साथ जाते हैं तो चिपकते नहीं. जैसे ये पेन यहाँ रखा हुआ है, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो अगर हम रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या होता है, देखिए, क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यहाँ मान लीजिए आप हो, जो पर्सन ए है, और यहाँ जो है कोई पर्सन बी है. ये दोनों एक दूसरे के फोर्स ऑफ, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, मतलब ये पर्सन जो है, पर्सन ए पर्सन बी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और पर्सन बी पर्सन ए को अपनी तरफ खींच रहा होगा. दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे. ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग तो हमने यही पढ़ा, ठीक है. और दोनों किस पे लाई कर रहे हैं? तो दोनों हमारे अर्थ पे लाई कर रहे हैं, अर्थ में. ये हमारा क्या है, अर्थ है. ये हमारा क्या है, अर्थ है. तो ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है. फिर ये चिपक क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा कि फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी. एनी टू बॉडी में आप कुछ भी बॉडी ले सकते हैं. हम लोग दोनों फ्रेंड भी, तो ये लोग दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिर चिपक क्यों नहीं रहे? रीजन ये है क्योंकि इन दोनों की जो अट्रैक्शन, मान लीजिए इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स, इसका मान लेते हैं, ये जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसका फोर्स मान लेते हैं एफ ए, और इसका फोर्स मान लेते हैं एफ. ये इसको एफ बी फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, और ये इसको एफ ए फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है. बट जो अब अर्थ भी तो अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर में क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि अर्थ जो है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और हम लोग को अपने सरफेस पे खींच के रखता है ना. तो अर्थ भी क्या लगा रहा है, एफ ई फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अर्थ. एफ ई का मतलब फोर्स ऑफ अर्थ, ये फोर्स ऑफ ए, ये फोर्स ऑफ बी ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो अर्थ भी तो अपने फोर्स अपने इन दोनों पे क्या लगा रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है. तो अर्थ का जो फोर्स है ना, इसका फोर्स जो है इन दोनों के आपस में अट्रैक्शन फोर्स से काफी ज्यादा है. क्या समझे? कि मतलब अर्थ जो है ए और बी को अपनी तरफ नीचे खींच के रखा हुआ है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा, हालांकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर, बट व्हाई डोंट दे अट्रैक्ट, है ना. व्हाई डोंट दे अट्रैक्टिंग ईच अदर? बिकॉज ऑफ अर्थ फोर्स. अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा है कि ये इनको, अर्थ इनको अपने तरफ क्या करके रखा हुआ है, पकड़ा हुआ रखा हुआ है, ठीक है. इसीलिए ये ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते. इसीलिए देखिए जब भी हम लोग अर्थ पे खड़े रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. अगर वही हम लोग क्या चले जाए, अर्थ को छोड़ के अगर स्पेस में चले जाए, तो स्पेस में हम लोग एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अपने हाथों को आप इस तरह से करके रख सकते हैं. अपने हाथों को देखिए इस तरह से रखिएगा ना, और जब ये उंगली को अपने सामने लाइएगा, इस तरह से सामने लाइएगा, तो देखिएगा ये उंगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना. ये तो उंगली दिखाया है, एक दूसरे को इस तरह से ट्रैक करेगा. एक बार करके देखिएगा. तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास अवेलेबल है वो सभी में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. बट बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटीज, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे चिपक नहीं पाते हैं. बट वही अगर हम स्पेस में चले जाए, अगर हम स्पेस में चले जाए, तो वहां देखिएगा कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, हम नजदीकी ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. रीजन? क्योंकि वहां पर अर्थ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता है. तो दिट इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी डोंट अट्रैक्ट ईच अदर इन द सरफेस ऑफ अर्थ. बट इफ वी गो टू द स्पेस, देन वी विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. ऐसा नहीं कि हम लोग आपस में नहीं चिपकेंगे. मान लीजिए हमारे आसपास कोई भी कुछ ऑब्जेक्ट होंगे अर्थ में, तो उसके साथ जाके हम क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे. क्यों? क्योंकि रीजन है कि दोनों क्या है, मैटर है, स्पेस ले रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कुछ मास है उनका. तो ये सभी क्या कहलाते हैं, मैटर्स. हम लोग भी क्या है, वी ऑल आर मैटर्स. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. तो ये सभी क्या है, मैटर्स है.
ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, हम लोग जितने भी आसपास ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही रीजन है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में हम लोग डिफरेंस बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ हम लोग पे लगाता है ग्रेविटी और हम लोग एक दूसरे पे लगाते हैं ग्रेविटेशन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। लेट्स डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में डिस्कस करते हैं कि आखिर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। न्यूटन बाबा का तो नाम सुने ही होंगे, सब बच्चे परेशान हैं, अरे बाबा उस समय फल नहीं गिरता, ऐसा सब थीम बना करके फल फल नहीं गिरता, तो न्यूटन जी इतना बड़ा बड़ा थ्योरी लिख के नहीं देते, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ, सब बच्चे परेशान क्या। तो थोड़ा सा लॉज इसमें भी आपको 11th में जानना ही पड़ेगा कि न्यूटन जो है वो 11th में भी ग्रेविटेशन को लेके कुछ लॉज दिए हुए हैं, वो लॉज यू नीड टू नो। तो व्हाट आर द लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज विच वाज गिवन बाय द न्यूटन। तो देखते हैं कि न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो न्यूटन लॉ, लॉज ऑफ न्यूटन। अगर लॉज ऑफ न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के द्वारा क्या लॉ दिया गया, ठीक है, क्या लॉ दिया गया, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, है ना। न्यूटन के द्वारा लॉ क्या दिया गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies is directly proportional to the product of their masses, to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance, to the square of their distance. This law was given by the Newton. न्यूटन क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, तो दो बॉडीज के बीच में, मान लेते हैं दो बॉडीज है मेरे पास, ये बॉडी मेरा 1 है जिसका नाम है m1, ठीक है, और ये बॉडीज मेरा 2 है जिसका नाम है m2, ठीक है, ये दो बॉडीज है m1 और m2। अब कॉमन चीज है कि हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि ये दो बॉडीज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर हम मतलब बताएं क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, क्या होता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। बट एक अगर बढ़ रहा है और एक घट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड है आपका बी, ठीक है, ये जो है ये भी मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हैं, ठीक है, और दोनों अगर ए और बी जो है, अब दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है, दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, जब ए आगे बढ़ेगा तो बी भी क्या होगा, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, है ना। तो ए और बी जब ए आगे बढ़ने पे अगर बी भी आगे बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। इसको हम इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग अल्फा पढ़े होंगे, इस तरह से अल्फा लिखते हैं ना, तो ये अल्फा के जैसा साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। क्यों, क्योंकि ए आगे बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है तो बी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट ए और बी अगर मान लीजिए एक दूसरे के दुश्मन निकल गए तो ए जब भी आगे बढ़ेगा तो बी क्यों क्या चाहेगा, वो कम करना चाहेगा, ठीक है। कॉमन चीज है, अगर हमारे दुश्मन है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने दुश्मन को क्या चाहेंगे कि वो हमसे पीछे हो, है ना। तो अगर ए आगे बढ़ेगा तो बी क्या होगा, कम होगा, घटेगा। ए अब मान लीजिए अमीर बन रहा है तो ए क्या चाहेगा, बी बहुत गरीब बन जाए, रीजन क्योंकि वो उसका क्या है, एनिमी है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। मतलब साइन सेम रहेगा बट बी सामने सामने ना रख के क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरह से, ठीक है।
तो आप समझते हैं डायरेक्टली। आप देखिए यहाँ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़े हैं, तो न्यूटन्स लॉ में क्या ग्रेविटेशन में क्या पढ़े हैं कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज हम ले लिए, एक बॉडी ले ली है m1 और एक बॉडी ले लिए है m2, ठीक है। तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये भी इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों में बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के मल्टीपल के क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब कि m1 इंटू m2 का। डायरेक्टली का मतलब देखिए सामने सामने लिखे, जैसे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखे थे सामने सामने, मतलब कि एज बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, मतलब फोर्स बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में मासेस भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल समझिए ना, बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को धीरे से फेंकिएगा तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और कस के फेंकिएगा ज्यादा दूर जाएगा। वही डिपेंड है, जितना ज्यादा हम बॉल पे फोर्स लगाएंगे बॉल उतना ज्यादा क्या करेगा, दूरी तय करेगा, और जितना कम फोर्स लगाएंगे बॉल उतना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो वही है कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि फोर्स जो है वो दो मासेस के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, r है, मतलब कि डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, ये फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या बोले थे हम कि a जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली मतलब 1/b लिख देंगे, और डिस्टेंस को हम क्या माने हैं, r, मतलब f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, मतलब 1/r² के, है ना। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो अगर 1 और 2 को हम अगर कंबाइन करें तो कंबाइन करके हम क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय r²। इन दोनों को कंबाइन करके हम ये, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ जो है एक बात हमको खाया जा रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी खाया जा रहा है क्या, कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू, इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। और कांस्टेंट की फॉर्म में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के फॉर्म में क्या करेंगे, ग्रेविटेशन का कैपिटल जी जो है वो हम एज ए कांस्टेंट यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। मतलब कि फोर्स, अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी को हटा रहे हैं ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के जब भी इज इक्वल टू का साइन डालिएगा तो इसके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बदले हमको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ता है, वो कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, जी। अब जी के बारे में समझाएंगे क्या होता है, और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r², जी m1 m2 बाय r²। इसको बोलते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r²। m1 जो है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 जो है मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और g जो है वेयर, g जो है, g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए हम, तो मेरा वेट अर्थ में अलग होगा, मून में जाएंगे तो उसका 1/6 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए मेरा 72 kg 72 kg वेट है, ठीक है, तो मून में जाने में मेरा वेट कितना हो जाएगा, 72 को क्या कीजिएगा 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 12 kg हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 kg। मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक स्मॉल जी पढ़ते होंगे ग्रेविटी, और एक पढ़ते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या है कि अगर मेरा जो मास, मेरा कुछ भी अगर मास होगा तो मास कभी चेंज नहीं होता, ये भी आपको पता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में क्या रहता है, सेम होता है, चाहे हम अर्थ में रहे, चाहे हम मार्स में जाए, चाहे हम स्पेस में जाए, चाहे हम मून में जाए, चाहे हम कहीं भी जाए। इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू हर जगह क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी हर जगह अलग अलग होता है।
कैसे? अर्थ में मेरा वेट अलग है ना, और मून में मेरा वेट क्या हो गया, 72 केजी से कितना हो गया, 72 केजी से घट के कितना हो गया, 12 केजी हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका आप लोग पढ़े होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू रहता था। ये जो है अर्थ में आपका एक्सेलरेशन, मतलब जी के स्मॉल जी का क्या है, वैल्यू है ना, ये अर्थ का है। ये कैपिटल जी है पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स का है। ये बस स्मॉल जी जो होता है वो अर्थ लेवल पे लाई करता है, लेकिन कैपिटल जी जो है वो ऑल ओवर यूनिवर्स में, चाहे आप कहीं भी चले जाए, स्पेस में कहीं भी चले जाए, वहां क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो वैल्यू भी हमको जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर वैल्यू की बात करें, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब यूनिट क्या होता है, क्या लगाएंगे, ठीक है। तो हम अभी फोर्स देखिए, फोर्स हम क्या निकाले, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर, इसको निकाले है ना। पहले चले इसी से हम यूनिट ढूंढेंगे। देखिए F इज इक्वल टू क्या निकला था, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, नहीं निकला था। अब जी का वैल्यू निकालना, सबको उधर कर देंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, क्या होगा जी का वैल्यू, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 इज इक्वल टू क्या बच गया, जी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया मेरे पास एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, ये वैल्यू मेरा आ गया जी का। अब देखिए तो इसका यूनिट अगर ढूंढे तो यूनिट क्या होगा, तो जी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आर, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग क्या में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में, तो आर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो दो बार मास है, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। यानी कि यूनिट जो हो जाएगा मेरा, यूनिट जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वैल्यू हम क्या देखें, 6.67 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। जहां पर जो भी इक्वेशन अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें कैपिटल जी का वैल्यू हम यही पुट करने वाले हैं। ठीक है तो ग्रेविटी समझ गए, ग्रेविटेशन समझ गए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ गए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, वैल्यू समझ गए कि वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम तो समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का डेफिनेशन लिखने से पहले, है ना, कैपिटल जी का डेफिनेशन लिखने से पहले इसका हम पहले वैल्यू देख लेते हैं। तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या था, तो कैपिटल जी का वैल्यू था एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2, यही था ना। कैपिटल जी का वैल्यू क्या था, एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, यही वैल्यू था। अगर हम याद रखिए, अगर हम m1 एंड m2 इसका वैल्यू अगर हम 1 ले, क्या ले लेते हैं, 1 kg ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो है r, इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए तो इसका वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, g इज इक्वल टू f तो सेम ही रहेगा, r कितना है 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, m1 इंटू यानी कि 1 इंटू 1, यानी कि g और f आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल। तो डेफिनेशन अगर g की बात करें, तो डेफिनेशन ऑफ g क्या है, इट इज डिफाइंड, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द मासेस, ठीक है, व्हेन द मासेस इज यूनिट, यूनिट अगर हम मास ले लें और यूनिट हम क्या ले लें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर ले ले और दोनों का मासेस अगर हम 1 ले ले, तो हम देखते हैं कि जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, वो लगभग लगभग किसके बराबर होता है, तो फोर्स के बराबर होता है। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट, समझिए कि दो ऑब्जेक्ट हम क्या लिए थे, दो ऑब्जेक्ट में m1 m2, ये भी 1 kg ले लेते हैं और ये भी 1 kg ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 kg ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ले लेते हैं 1 मीटर, तो लगभग लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स दोनों आपस में क्या होगा, ग्रेविटेशन और फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो डेफिनेशन ऑफ जी में हम इसलिए लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस हैविंग वैल्यू कितना 1 एंड डिस्टेंस 1 मीटर, दैट द ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में जो लगेगा, ठीक है, वो उसमें जो मास होना चाहिए वो क्या लगना चाहिए,
यूनिट मास होना चाहिए और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two bodies में 1 kg का दोनों मास ले लिए, तो between two bodies having unit mass लिख लीजिए, यूनिट मतलब एक, having unit mass and the distance between them is 1 meter, है ना, having unit mass and unit value, unit distance या unity distance is unit distance, having unit distance, क्योंकि केजी में रहेगा तो 1 केजी और मीटर में रहेगा तो 1 मीटर, इस तरह से केजी मीटर सेंस चेंज होता है, ठीक है। अगर मास अगर 1 मीटर है तो ये मेरा 1 केजी होगा, ठीक है। तो हैविंग यूनिट डिस्टेंस, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जी को डिफाइन कर सकते हैं। जी में क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट में, तो उनका यूनिट मास होना चाहिए, मतलब वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब कि वैल्यू जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर के बराबर होना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। वैल्यू तो बताई थी, यूनिट क्या होता है, मतलब वैल्यू बताई थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको एक और तरीका से आप याद कर सकते हो, अगर हम ग्रेविटेशन लिखें, वैल्यू 10⁻11 याद मान लीजिए भूल जाते हैं, तो ग्रेविटेशन लिखिए, ग्रेविटेशन TATION काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 आ रहा वर्ड में, तो वर्ड में हम इजिली क्या कर सकते हैं, 11 जोड़ सकते हैं, मतलब ग्रेविटेशन में वर्ड में 11, मतलब इसमें पावर में भी क्या हो जाएगा, 11। इससे हम क्या कर सकते हैं, इजिली 10 टू द पावर कितना होगा वो ऐड कर याद रखने के लिए हम ग्रेविटेशन को लिख लेंगे, इसमें काउंट करेंगे कितना वर्ड आ रहा है, उसमें हम इजिली हम याद कर सकते हैं। ट्रिक है याद करने का, मान लीजिए अगर 10 टू द पावर कितना है अगर भूल जाते हैं, 10 टू द पावर -11, तो 11 निकले, याद रखने के लिए आप ग्रेविटेशन से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ग्रेविटेशन के बारे में। ये हो गया जी, जो कैपिटल जी जो होता है वो होता क्या है। अब जी का डायमेंशन की अगर हम बात करें ठीक है, तो अब डायमेंशन ऑफ जी की बात करते हैं। डायमेंशन होता है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब पढ़िएगा, चैप्टर 1 पढ़े होंगे, तो यूनिट में डायमेंशन वगैरह निकालने आप सीखे ही होंगे, किसका कितना डायमेंशन हो तो याद किए ही होंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ जी मतलब कैपिटल जी। तो डायमेंशन ऑफ जी निकालने से पहले जी का वैल्यू फॉर्मूला क्या लिखे थे, जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या, कि FR² बाय क्या होता है, M1 × M2 मेन होता है जी का वैल्यू। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए, जी का डायमेंशन निकालने के लिए हमको इसका डायमेंशन पहले पता करना होगा। तो ये F यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। सब यूनिट और मेजरमेंट में पढ़े हुए हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, मतलब कि अभी चैप्टर 7 है, 1 2 जब पढ़िएगा तो उसमें आपको डायमेंशन के बारे में दिया हुआ है ना, वो याद कर लीजिएगा। तो F फोर्स की बात करें तो MLT-2 इंटू, अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, और मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से ही, तो यहाँ मास इंटू M हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका M1 मास का M और M2 मास का M, और फोर्स का डायमेंशन जो होता है वो कितना होता है, MLT-2। याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, इनका डायमेंशन जो होता है वो होता है लेंथ से रिप्रेजेंट, L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास को हम लोग M से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो G इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो M स्क्वायर होगा, M इंटू M कितना हो जाएगा, M स्क्वायर, और ये M स्क्वायर ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जाने के बाद M का पावर क्या होता है, चेंज होता है, ये तो बताइए होगा क्लास में कि स्क्वायर जो है ऊपर जाके क्या होगा, पावर चेंज होता है, नीचे लाओगे तो फिर पावर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो M इंटू M क्या हो गया, मेरा M स्क्वायर के बराबर आ गया, M स्क्वायर ऊपर ले गया, M का पावर -2 हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या है M, ठीक है, ये L का पावर 1 है, ठीक है, सबको एक साथ लिखते हैं, M इंटू ये M का पावर -2 को इसके साथ में लिखिए, M का पावर -2 इसको ऊपर ले जाके एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला को एक ही साथ ऊपर ले गए, तो M, ये M का M, ये M का पावर -2 को नीचे वाला को ऊपर ले गए, M का पावर -2 हो गया, M स्क्वायर 2 में कन्वर्ट हो गया माइनस में, इंटू L स्क्वायर का L स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इंटू ठीक है, L स्क्वायर का L स्क्वायर रहेगा, और L का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और इंटू में क्या करेंगे, T का पावर -2 ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, T का पावर -2। अब हम G की बात करें तब देखिए तो इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि पावर बेस सेम रहता है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो देखिए इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है -2,
ऐड कीजिए तो 1 प्लस माइनस टू, 1 माइनस टू हो जाएगा, और 1 माइनस टू यानी कि m का पावर कितना हो जाएगा, -1, m -1 बेस से पावर ऐड कीजिए, l का क्या हो जाएगा क्यूब, और t क्या हो जाएगा -2, यानी कि m -1 l क्यूब t -2 जो हो जाएगा वो मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, तो वो मेरा वैल्यू हो जाएगा, सॉरी वो मेरा डायमेंशन हो जाएगा किसका, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी का डायमेंशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कैपिटल जी का डायमेंशन एक नंबर में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, m-1 l क्यूब और t-2, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, इतना में कोई अगर डाउट होता है तो जरूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत कमेंट में बता सकते हैं, और किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो वैल्यू हो गया मेरा प्रॉपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जी को हम लोग क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब व्हाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाई कैपिटल जी, व्हाई कैपिटल जी is called universal gravitational constant। हाँ ठीक है, तो y कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इसकी बात करें कि जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे क्यों बोलते हैं, तो पहले समझिए सबसे पॉइंट 1, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडीज भी बोल सकते हैं। समझाएंगे इसके बारे में कि पहला क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड on its nature and size of the bodies, ठीक है, इसका मतलब क्या समझे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। तो साइज ऑफ द बॉडीज और इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर का मतलब क्या हुआ, कि नेचर का मतलब कि अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको दो अर्थ के बीच में भी लगाना है, जैसे अर्थ और मार्स के बीच में लगाना है, या जुपिटर या मार्स के बीच में लगाना है, तो उसमें भी आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कैपिटल जी है उसका वैल्यू सेम मिलेगा। मतलब नेचर का मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका अगर आप कैपिटल जी का वैल्यू पता करें तो कैपिटल जी का वैल्यू जो मैंने लिखाया वही होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यही होगा, लेकिन साइज ऑफ द बॉडीज पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब कि बॉडी मतलब बड़ा हो, चाहे हम हो और चाहे अर्थ हो, हम लोग दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे ना, तो हम लोग दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों बराबर होगा। मतलब कि मैं अर्थ से क्योंकि बहुत छोटा हूँ, है ना, अर्थ की कंपेरिजन में तो एक चीटी मात्र भी नहीं, एकदम नेग्लिजिबल हो। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। मतलब मान लीजिए ये मेरा हम है और ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर बोलेंगे सर तो इक्वल होता है तो हम लोग अर्थ पे क्यों चिपके हुए हैं, अर्थ हमारी तरफ क्यों, जब भी हम उछलते हैं तो हम अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ मेरी तरफ नहीं खींचता है। क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हमने पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडी के बीच में, तो दोनों जितना हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ मेरे पे उतना ही फोर्स लगा रहा है ना जी। हम जितना अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं उतना तो अर्थ भी मेरी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो हम ही क्यों अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ मेरी तरफ क्यों नहीं आता है। तो रीजन क्या, रीजन है क्योंकि अर्थ का जो मास होता है ना बाबू, अर्थ का जो मास होता है, ठीक है, वो हमारे मास से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा, बहुत मच मोर ग्रेटर होता है, मच मोर ग्रेटर। ठीक है, हमारा मास जो होता है एकदम नेग्लिजिबल है अर्थ के कंपैरिजन में, हमारा मास जो होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम जंप करते हैं
तो हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना कि अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अगर हम प्रॉपर आपको डेफिनेशन भी समझाए तो देखिए, आप लोग क्लास 10 में तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़े हैं ना। तो मान लीजिए कि ये हम है, मान लीजिए ये हम है, और ये मान लीजिए मेरा क्या है, प्यारा सा अर्थ जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हरा भरा अर्थ। ठीक है, पेड़ वगैरह लगाइएगा नहीं तो हरा भरा अर्थ कब कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए पेड़ हम लोग को लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हम है और ये हमारा अर्थ, जाके हम ही चिपक रहे हैं अर्थ में, अर्थ में तरफ नहीं चिपक रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इन दोनों के बीच का रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। अब इसको हम डेफिनेशन में बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें हमारा फोर्स और अर्थ का फोर्स, हमारा फोर्स को हम लेते हैं फोर्स ऑफ पर्सन, एफ से हम अपना फोर्स को ले लेते हैं, और अर्थ का फोर्स ले लेते हैं फोर्स ऑफ अर्थ, ई से, एफ ई का मतलब फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि हम क्या बताए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कि जितना हम अगला पे अर्थ फोर्स लगाते हैं उतना ही अगला भी मेरे पे फोर्स लगा रहा है ना। वही क्या कर रहा है, दोनों मेरे पे सब बराबर फोर्स लगा रहा है। देखते हैं फोर्स, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन जो होगा, मेरा फोर्स और इसका फोर्स दोनों क्या होगा, बराबर। यानी कि हम जो अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं और अर्थ मेरे पे जो फोर्स लगा रहा है, एफ ई और एफ पी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये दोनों बराबर होगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स ऑफ अर्थ है तो एम ई और ए ई ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ये ले लेते हैं, और बराबर ले लेते हैं। फोर्स ऑफ पर्सन है तो अपना लेते हैं मास ऑफ पर्सन और एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन ये ले लेते हैं। और मास और एक्सेलरेशन को अगर सेपरेट करें तो एम पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा में, तो ये एम ई इधर रहेगा ही, नीचे में क्या हो जाएगा, मास ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो मास ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एक दूसरे क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह से मास ऑफ पर्सन और एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन एक दूसरे क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम बात करें तो मास जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के। क्या होता है, एक्सेलरेशन के। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। और क्योंकि हम बताया आपको कि अर्थ का मास क्या है, हम लोग के मास से बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का मास इतना ज्यादा होने के कारण अर्थ का एक्सेलरेशन क्या है, कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास ज्यादा होने पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो गया। एक्सेलरेशन मतलब इसलिए अर्थ हम लोग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, और क्योंकि हम लोग का मास कम है, हम लोग क्या है, मास कम होगा तो कॉमन चीज है एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ऐसे समझिए ना, मास मतलब हम बहुत मोटे तगड़े हैं, तो मोटे तगड़े तो हम दौड़ने में प्रॉब्लम होगा, कॉमन चीज हम नहीं दौड़ पाएंगे। हाँ, वही अगर मेरा मास अगर कम रहता है, हल्के फुल्के आदमी जो पतले दुबले आदमी होता है उसको दौड़ने बोलेगा आराम से दौड़ जाएगा, हाफ पैंट पहनेगा, चना खाएगा, फूक के निकल देगा। रीजन क्या है, क्योंकि उनका मास काफी कम है। अब कॉमन चीज है, मास कम होने के कारण पतला दुबला आदमी का मास कम होता है, जिसके कारण उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरह से अर्थ का भी मास क्या है, बहुत ज्यादा है। अब मास ज्यादा होने पे, वेट ज्यादा होने पे आदमी धीरे दौड़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन मतलब मूवमेंट, है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम लोग जंप करते हैं तो हम लोग अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, है ना, बिकॉज ऑफ देयर मासेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड पर्सन। बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि सर क्यों हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है। तो याद रखिएगा ये बात कि मास जो होता है, ये देखिए डिफरेंस से भी हम समझा दिए कि मास ऑफ अर्थ जो होता है अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन देखिए नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। एग्जांपल के लिए हम पीछे समझाई दिए, ए और बी का एग्जांपल देखिए, एक बढ़ेगा तो एक क्या होता है, घटता है। दैट्स व्हाई जी को हम लोग बोलते हैं कि ये किसी भी नेचर पे और साइज पे डिपेंड नहीं करता। चाहे छोटा साइज देखिए, हम लोग कितने छोटे से हैं, अर्थ कितना बड़ा है, बट फोर्स जो होगा वो दोनों में बराबर लगता है। बट हम लोग का अट्रैक्ट क्यों होता है अर्थ की तरफ, रीजन हम बता दिए आपको। ठीक है, यही रीजन है कि हम लोग अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा इसका अगर इसका जी की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट डिपेंड द नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट अगर बात करें, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि इट डज नॉट डिपेंड्स, इट does not depends on nature of its medium between two objects,
टू ऑब्जेक्ट्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि ये मीडियम और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कैसे हम समझेंगे? तो नेचर तो बता दीजिए, कहीं उठा के ले लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही रहेगा, चाहे छोटा बड़ा ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, है ना। हम अपना अर्थ का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, फोर्स दोनों में सेम ही लगेगा। अब क्या बोले हम, नेचर और मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। नेचर और मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये कैसे हम बोल सकते हैं? तो नेचर और मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मान लीजिए कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं, है ना, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है ना, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, कॉमन चीज है। अब मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, क्या है? एयर है, क्या है? एयर, हवा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कैपिटल जी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को उठा के हम पानी के अंदर डाल दें, कहाँ डाल दें? इन दोनों को उठा के, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। इन दोनों को उठा के अगर हम पानी के अंदर डाल दें, मान लीजिए इसको पूरा पानी में डुबा दिए, पकड़ के इसको पानी में हम डुबा दिए, ठीक है, तो तब भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इसको किसी मीडियम में डालने के बाद भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, है ना। इसीलिए बोला गया है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड इट्स मीडियम। मीडियम मतलब मीडियम में यहाँ क्या था? एयर था, और यहाँ मीडियम में क्या आ गया? वाटर आ गया। तो वाटर और एयर दोनों का मीडियम चेंज होने के बाद भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ। तो ये मेरा क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कुछ कुछ मतलब प्रॉपर्टीज में ही इसको काउंट कर सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज में तो हम इसको काउंट कर ही रहेंगे, और स्पेशल प्रॉपर्टीज अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमारा था कि जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको उठा के हम एयर में डाल दें चाहे और पानी में डाल दें, फोर्स दोनों में सेम लगता है ना। इसीलिए ये यहाँ पर मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा हम बता दिए कि इसका नेचर भी सेम रहता है ना। नेचर हो जाए चाहे साइज में बड़ा हो छोटा हो, चाहे एक सेब है, मेरे सामने एक सेब खड़ा है, तो जितना हम सेब पे फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्टिव, सेब भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, बट मास पे डिपेंड करता है, मास अगर बड़ा छोटा हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉपिक डालिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम स्पेशल properties of gravitational force, some special properties of gravitational force। अब क्या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसके बारे में हम प्रॉपर समझते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडी के बीच में, वो कहाँ होता है? सेंटर। मतलब कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two bodies the force of attraction between two bodies, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, will held from its center, ठीक है। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कहां से होता है? सेंटर से होता है। सेंटर से मतलब कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, तो ये ऑब्जेक्ट बी है। अब हम बोले कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन दोनों के बीच में, ये कहां से होता है? इसके सेंटर से ये लोग दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ऊपर नीचे दाएं बाएं से नहीं, एकदम इसके सेंटर से होगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास ये दो पेन है ना, दो पेन है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके देखिए जहां मेरा हाथ पकड़े हुए हैं इसके सेंटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना कि इसके टिप वाले पॉइंट या इसके बैक वाले पॉइंट से होगा, नहीं, इसके सेंटर से इन दोनों में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये प्रॉपर्टीज है मेरा किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला प्रॉपर्टीज, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा उसके सेंटर से होता है, ठीक है। दूसरा आते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ, ठीक है। डाउट आप लोग को?
चलिए, अब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये कवर करता है। मान लीजिए ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, एक रास्ता है ऐसे 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 करके पहुंचने का ए से बी में, है ना, और एक रास्ता है सीधा, तो ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ ही कवर करेगा, ये रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता है, हमेशा इन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन्हीं के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट हैज अ, थर्ड पॉइंट लगाइएगा, इट हैज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि जितना हम उस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही मेरे पे वो फोर्स लगा रहा है, मतलब ए जो है जितना फोर्स लगा के बी को खींच रहा है, जितना फोर्स, मान लीजिए ए जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बी पे, तो बी भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है किस पे, ए पे, ठीक है। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा, इक्वल, मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, मतलब तुमको एक झापड़ मारेगा तो हम भी तुमको दो झापड़ मारेंगे, तो मतलब म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही झापड़ मारना पड़ेगा, दो झापड़ नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना फोर्स ये इसमें लगा रहा है उतना ही फोर्स अगला भी पहले वाले पे लगाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा हम बताते हैं इंडिपेंडेंट इन मीडियम होता है, देखिए हम पानी में डाले थे, एयर में डाले थे, दोनों में क्या था, सेम था, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट इन मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम मतलब चाहे एयर हो, गैस हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमेशा सेम ही होगा, चाहे एग्जांपल के लिए हम यहाँ बता ही दिया था आप लोग को, एग्जांपल के चाहे आप पानी में इन दोनों के बीच में फोर्स और चाहे एयर में इन दोनों के बीच में फोर्स, दोनों क्या है, बराबर था, तो मतलब ये मीडियम में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसी थर्ड मास के आने के कारण हैम्पर या चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो इट डज नॉट चेंज इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द थर्ड मासेस, है ना, तो ड्यू टू द थर्ड मासेस मतलब कि तीसरे मासेस, ये इंपॉर्टेंट भी है कि तीसरे मासेस के आने के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है, तो इट डज नॉट चेंज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ड्यू टू थर्ड मासेस, ठीक है, इट डज नॉट change the force of attraction, it does not change the force of attraction due to third mass, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको और अच्छे से हम समझे कि ये थर्ड मास के आने के बाद में भी जो पहले से दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो चेंज नहीं होता है, तो फॉर एग्जांपल समझते हैं ये मेरा मास ए है, ये मास बी है, ठीक है, ये मास ए है, ये मास बी है, मान लीजिए इन दोनों में मान लीजिए कि 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 8 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए मेरा तीसरा बॉडी है सी, ठीक है, अब तीसरा मास यानी कि थर्ड मास, अब तीसरा मास अगर मेरे यहाँ पर आ जाता है तो ये लोग दोनों में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये लोग दोनों में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, या मान लीजिए बी के साथ कोई आ जाता है डी, तो ये दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लगेगा ही लगेगा ना, तो किसी भी तीसरे मास के आ जाने के कारण इन दोनों में जो पहले से जो फोर्स, मान लीजिए इसमें 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसमें भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब इन दोनों में पहले से जो फोर्स लग रहा है वो चलेगा ही चलेगा, इन दोनों में फोर्स लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ ये जो पहले से जो इन ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा,
मतलब कि किसी भी थर्ड मास के आने के कारण, जैसे ए के साथ सी आ गया, बी के साथ डी आ गया, किसी भी थर्ड मास के आने के कारण जो ए और बी में जो पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था 8 न्यूटन का, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो पहले से चलता चला आ रहा था वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ग्रेविटेशन के बेसिक्स कंटेंट थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच में डिलीवर करने को। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी मैं इससे अच्छा कंटेंट आप लोग को बना कर दूं और आप लोग को ये प्रॉपर टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आया है तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर कमेंट आया अच्छा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरा चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूं और अच्छे से प्रॉपर कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, धन्यवाद।